अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिट स्टेप सिग्नल जो होता है वो तो हमें पता चल गया है, इट इज यूनिट स्टेप सिग्नल लाइक दिस. इट इज 0 and 1 when time is like this, moving like this. This is unit step signal and 0 पे ये अचानक से अपनी वैल्यू को चेंज करता है. यूनिट स्टेप सिग्नल suddenly changes to from 0 to 1 if it is time axis. Then what we see is at 0 there is a point of discontinuity. What is point of discontinuity? When the left hand limit is not equal to right hand limit. So 0 point पे when t is 0 minus, मतलब t is 0 minus means left hand side पे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? xt की वैल्यू होती है, xt की वैल्यू होती है 0. दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट. And when t is 0 plus means just after the 0, just after the 0 इसकी वैल्यू कितनी? 1. So x of t is 1. So since the right hand limit is not equal to the left hand limit, therefore this is regarded as a point of discontinuity in maths के अंदर इसे point of discontinuity कहा जाता है. But रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम t इक्वल टू 0 पे कोई वैल्यू एकदम से चेंज हो जाए. रियल वर्ल्ड में क्या होता है? इट विल ऑलवेज टेक सम फाइनाइट टाइम. हाउ मच टाइम? दैट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम. वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है. बट नो मैटर हाउ फास्ट इट कुड बी, बट इट विल बी टेकिंग सम टाइम टू चेंज फ्रॉम 0 to 1. ओके, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड स्विचिंग टाइम. In real words, any real system will take time to settle down from one state to another state. एकदम से instantaneous कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है. So maths और physics में ये difference है कि maths में तो you can write it to be like this, discontinuous function could be there, but in physics in real world there cannot be a discontinuous signal. Discontinuous signals are totally is not possible. Okay, so that means this ut has to be defined in a different way. Ut has to be defined in a different way, and that way will be like this. Let us suppose it changes from 0 to 1 in 2 epsilon time. 2 epsilon time means minus epsilon to plus epsilon, minus epsilon to plus epsilon. ये 0 इसके बीच में है. It changes from 0 to 1. ये रियल टाइम, ये रियल वर्ल्ड में ये आपका ऐसी सिचुएशन होगी. दिस इज मैथ्स का एंड दिस इज रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड में इट विल टेक हाउ मच टाइम? 2 epsilon time. 2 epsilon time where epsilon is very small. Epsilon tends to 0. If epsilon tends to 0, this signal will be same as this signal. Under the limit epsilon tends to 0, this signal will be same as this signal. Okay, you have to understand it. This is discontinuous signal and this is continuous signal. It changes like this, smoothly changes from 0 to 1 in between minus epsilon to plus epsilon time. And if epsilon tends to 0, this signal will be same as this signal. Okay, this is basically practical signal and this is ideal signal. So ideally ut will be like this, but practically it will be like this. Okay, now try to find out what will be the differentiation of this signal ut का differentiation क्या होगा? ut के differentiation को हम डेल्टा सिग्नल कहते हैं. डेल्टा सिग्नल ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ ut. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ut क्या होगा? अब 0 से जब 1 है तब तो इसकी वैल्यू 0 है, तो यानी इसका डिफरेंस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी 0. और 1 है तब भी इसकी वैल्यू 0 है,
क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन विल बी 0, सो डेल्टा विल बी 0 ऑलवेज, डेल्टा विल बी 0 ऑलवेज, it will be 0 always, no matter what the t is. So it will be 0, but it will not be 0 at t equal to 0. t equal to 0 पे इसकी वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी क्या होगी. t equal to 0, 0 अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है, और 0 से ऊपर है तो इसकी वैल्यू 1 है. बट 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू इज 0 for all values t when t is not equal to 0. t equal to 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? t equal to 0 पे इसकी वैल्यू होगी ये इसका स्लोप, क्योंकि रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका स्लोप. ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा? अभी बताया था 1/1, तो इसका वो हो गया, हाइट होगी 1 इसकी हाइट होगी, क्योंकि 0 1 माइनस 0 विल बी 1, और इसकी लेंथ क्या होगी? 2 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन इसकी लेंथ. सो दिस विल बी द वैल्यू व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन t इज 0, व्हेन t इज 0 तब डेल्टा t की वैल्यू ये होगी. ठीक है, नाउ what will be the area, क्योंकि अगर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, let us integrate this डेल्टा t को जब इंटीग्रेट करेंगे for all values of t, तो क्या होगा? for all values of t it should be the area under the curve. अब इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 1/2 एप्सिलॉन, जो इसकी हाइट है, इनटू ब्रेथ क्या है? 2 एप्सिलॉन, यानी कि इसका एरिया 1 होगा, यूनिट एरिया होगा. इसी वजह से इस डेल्टा टी को हम कहते हैं यूनिट इंपल्स सिग्नल. Delta t is known as unit impulse signal, and it is basically differentiation of unit step signal. It is the differentiation of unit step signal. What is its property? It is defined as its value is 0 for all values of t नॉट इक्वल टू 0. मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, बस जहां पे t नॉन इक्वल टू 0 है. बट इट्स वैल्यू इज नॉट डिफाइंड एट t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती कितनी होगी, पर इसका एरिया डिफाइन किया जा सकता है. एरिया कितना होगा? 1. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें डेल्टा टी को प्लॉट करना हो यूनिट इंपल्स सिग्नल को, तो हमें ये तो पता है कि टी जब 0 नहीं है, या टी 0 से ऊपर है या 0 से नीचे, तब इसकी वैल्यू 0 है, टोटली डिफाइंड है. बट एट टी इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट इसकी वैल्यू कुछ ऐसी है कि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा. मतलब कि अगर डेल्टा टी, इसका बेसिकली एम्पलीट्यूड कितना होगा? 1/2 एप्सिलॉन, 1/2 एप्सिलॉन इसका एम्पलीट्यूड होगा. 1/2 एप्सिलॉन इसका एम्पलीट्यूड 1/2 एप्सिलॉन है. ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन है, क्योंकि जब हमने इसे वो किया था, डिफरेंशिएट किया था, तो इसका एम्पलीट्यूड आया था 1/2 एप्सिलॉन, और इसकी हाइट 2 एप्सिलॉन है. सो डैट कि इसकी जो हाइट इंटू विड्थ, जो एरिया है, वो टोटली यूनिटी है. अब एप्सिलॉन अगर टेंड्स टू 0 है, तो ये कैसा कर्व होगा? ये कर्व ऐसा होगा कि ये तो 0 की तरफ जाएगा, इसकी विड्थ 0 की तरफ जाएगी, और इसकी हाइट जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि 1/0 विल बी इंफिनिटी एंड दिस थिंग विल बी 0. सो under the condition that epsilon is 0,
this signal will convert to this. This is what we call the spike. इसका मतलब ये एक स्पाइक है, 0 पे एक स्पाइक आएगी जहां पे इसके जो एम्पलीट्यूड होगा इट विल बी अनडिफाइंड, बट इसका एरिया जो होगा वो 1 होगा और इसकी जो विड्थ होगी वो 0 होगी. सो दिस इज हाउ डेल्टा टी इज डिफाइंड. डेल्टा टी इज like this. Unit impulse signal is the differentiation of unit step signal and it is 0 for all the values of t not equal to 0, and it is not defined for t equal to 0, but its height is spike like this and its area under the curve will be always unity. Therefore it is called unit impulse signal. ये तो unit step signal continuous time domain में हो गया. Discrete time domain में कैसा होता है? Discrete time domain में we can always define delta t, delta n to be like this. Delta n will be 1 when n is equal to 0 and 0 when n is not equal to 0. When n is not equal to 0. So it means it will be like this. It will be 0 always, but 1 पे इसकी वैल्यू, सॉरी 0 पे इसकी वैल्यू, n इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी. ये n है, बाकी सारे n's पे इसकी वैल्यू 0 होगी. यानी 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0, -4 पे भी 0, ऐसे ही -1 पे 0, -2 पे 0 एंड 0 एंड सो ऑन. मतलब सब जगह इसकी वैल्यू 0 है, केवल 1 पे इसकी वैल्यू 1 है. ओके, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम निकाल सकते हैं u ऑफ n माइनस, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 1. u ऑफ n माइनस 1. व्हाट इज un? un मैंने बताया ही आपको. un इज लाइक दिस. इट विल बी हैविंग वन वैल्यू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन 1. ऑल द वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन 0. 0 से ऊपर जितनी वैल्यूज होंगी सबके लिए 1 है. 2, 3, 4 एंड सो ऑन लाइक दिस. दिस विल बी un. u ऑफ n माइनस 1 क्या होगा? u ऑफ, सॉरी ये un है. u ऑफ n माइनस 1 क्या होगा? u ऑफ n माइनस 1 यही सिग्नल होगा, बट ये 0 से स्टार्ट ना होके 1 से स्टार्ट होगा लाइक दिस. u ऑफ n माइनस 1 विल बी लाइक दिस. u ऑफ n माइनस 1 विल बी लाइक दिस. It will be u of n minus 1 and 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी. 1, 2, 3, 4, 5. This will be u of n minus 1. -1 का मतलब शिफ्ट हो गया राइट की तरफ और 1 से डिले हो गया, यानी कि जो 0 हमारा यहाँ पर आ रहा था वो 0 अब 1 पे आएगा. ठीक है, तो u of n minus u of n minus 1 will be delta 1. Obviously when this thing subtracted by this thing, you will get this thing. Agree? When this thing u of n get subtracted by u of n minus 1, तो ये सारे सैंपल्स सारे इधर के तो 0 से 0 कट जाएंगे, इधर के 1 के ऊपर वाले इससे कट जाएंगे, तो 0 पे आपका 1 रह जाएगा. यानी ये वाला सिग्नल बस रहेगा, ये वाला सिग्नल आपका रहेगा. ठीक है, ये वाला सिग्नल 0 पे, और वही डेल्टा है ना. तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस ऑफ un. This is called first difference. जैसे हम उसमें डिफरेंशिएशन की तरह हमने कंटिन्यूस टाइम डोमेन में हमने डिफरेंशिएशन की तरह इसे डिफाइन किया था. डेल्टा टी इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ यूटी. डिस्क्रीट टाइम डोमेन में डेल्टा एन इज डिफाइंड एज फर्स्ट डिफरेंस ऑफ यूएन. फर्स्ट डिफरेंस ऑफ यूएन. सेकेंड डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड डिफरेंस ये होता है u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 2. इसको हम सेकेंड डिफरेंस कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया. दिस इज फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस इसे कहेंगे. तो सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेकेंड डिफरेंस मतलब कि 0 पे 1, 0 पे 1 और 1 पे 1, बाकी सब जगह 0. ये सेकेंड डिफरेंस.